evening, everyone. I, Dr. Manpreet Kalo, on behalf of Emoha, welcome all of you to yet another Elder Hour at Elder's first festival at Emoha. So today we have a very special guest speaker, Dr. N.N. Prem. Dr. N.N. Prem is a doctor for elders. He's a geriatrician. So Doctor completed his MBBS from MGM Medical College, Aurangabad, and then pursued his MD in geriatric medicine. His senior residency was at Department of Geriatric Medicine, All India Institute of Medical Sciences. And thereon he continued continued as assistant professor as well. So Dr. Saab has an experience of more than 10 years in geriatric medicine, though his areas of interest includes dementia, geriatric oncology, community geriatrics, and chronic care. Currently, he is the founder, head, and chief consultant at geriatric medicine at Jaslok Hospital, Mumbai. He is the one who established the first ever department of geriatric medicine in South Mumbai at Jaslok Hospital and Research Center. He also plays a leadership role in Graceful Living Initiative. So we welcome you, Dr. Prem. And our second guest today is Dr. Grewal. Dr. Grewal needs no introduction on Emoha platform. He's a senior consultant with Fortis Escorts Okhla, and he's also President Delhi Medical Association. We welcome you, Dr. Grewal. Thank you. So Dr. Grewal and Dr. Prem आज एक बहुत interesting, yet another interesting episode पे discussion करेंगे, which is prevention of falls. And I'm sure it is a very, very relevant topic for all the elders who've joined the session. As Dr. Grewal keeps on checking me every time, कि elders मत बोला करो. You guys are the elders, we are the youngsters. So I'm sorry for all the youngsters today. Here we have prevention of falls. Over to you, Dr. Grewal and Dr. Prem. Thank you, Dr. Kalo, and a warm welcome, Dr. Prem. It's a pleasure to have you with us. It's a pleasure in two ways. To have an academician amongst us where we are all just groping with our own ideas. When you have an academician, I'm sure the academician will guide our energies and bring us to some concentrated way of dealing the issue of geriatrics. Today's topic is very important, prevention of falls. Now you elders must be wondering कि गिरने में क्या खासियत है? केले के छिलके से फिसल के भी गिर जाते हैं लोग. You can fall with a broken shoe. You can fall in the bathroom trying to pick up a soap. So what is it special about prevention of falls in elders? That is the mystery that first of all, there is falls and second is elders. So it is not falls in everybody. It's not falls in the entire population, which we want to discuss today. It is falls in the elderly. So the falling in the elderly has some peculiarities about it. There are probably more predisposing factors, and there are probably more different complications once an elder falls. So दोनों को जानने के लिए कि क्या चीजें हैं जो elders को high risk में बनाते हैं और क्या चीजें हैं जो fall के बाद complications आते हैं. And one thing you all must know that 45% of falls beyond the age of 65 years are considered preventable. And that is what you will learn today, that how to prevent a fall in an elder. Dr. Prem, welcome, and please take us through this interesting topic. Yeah, thank you. Thanks a lot, Dr. Kalon, for the introduction, and thanks a lot, Dr. Grewal. It's really nice to be on the same panel as you, and you have set the context already. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगा क्योंकि नहीं तो वैसे ही फॉल काफी कॉम्प्लिकेटेड है. सो अल्टीमेटली गिरना जैसे डॉक्टर ग्रेवा बोल रहे थे कि बहुत ही लूजली कहा जाता है आप गिर गए, पर गिरने के बाद जो दिक्कतें होती हैं
जो हालत खराब हो सकती है बुजुर्गों की स्पेशली, वो काफी ज्यादा तक, लंबे अरसे तक उसकी यू कैन से जो आप भरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि गिरने के बाद एक चीज ऑलरेडी हो जाती है जिसको हम फियर ऑफ फॉल कहते हैं। तो बहुत सारे फिट एल्डरली या फिट ओल्डर एडल्ट जिसको जो नॉर्मली चल भी रहे हैं, पर एक बार गिर जाए तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्कुल नील हो जाता है, और वापस चलने के लिए जो मोटिवेशन उन्हें लगता है वो ना ही खुद का मोटिवेशन लगता है, दूसरों के मोटिवेट करने के बावजूद बहुत टाइम बाद वो शायद वापस चल पाते हैं। तो इसीलिए ये जो फॉल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा स्लाइड्स में नहीं बात करने वाला हूँ आज, क्योंकि मेरे को लगा कि ये एक कॉन्वर्सेशन जैसा रहेगा तो बेहतर रहेगा, जिसमें मैं आपसे थोड़ी चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो ग्लेयरिंग है, इंपॉर्टेंट है, आपको फॉल्स के बारे में जानना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि देयर इज नथिंग नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ फॉल्स। फॉल्स आर ओनली प्रिवेंटेड। इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि फॉल होने के बाद यू डोंट ट्रीट द फॉल, यू ट्रीट द कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत खराब हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़े टाइम में आपको बताऊंगा। तो फॉल है क्या? तब से मैं फॉल 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 बोले जा रहा हूँ। तो ये बेसिकली, ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे एक स्टेबल सरफेस में हैं और फिर फिसल गए और गिरने से ऐसे ही होता है, नहीं। आप फॉल, स्पेशली बुजुर्गों में, आप फॉल फ्रॉम अ हाइट हो सकता है, स्टेबल सरफेस पे हो सकता है। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग जो बेड पे रहते हैं और कभी कभी उससे ही फिसल के गिर जाते हैं, तो वो जस्ट रोल होके गिर जाते हैं। सबसे वर्स्ट फॉल होते हैं कभी कभी हॉस्पिटल्स में, जब जब जो साइड रेल्स एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए डाले जाते हैं, बट कभी कभी बुजुर्ग देखते नहीं है और उससे ऊपर निकलने के टाइम में इमेजिन वो हाइट और बढ़ जाता है, तो अगर रेल से ऊपर गिरते हैं बुजुर्ग तो और ज्यादा लगती है। तो जो प्रोटेक्शन के लिए दिया है कभी कभी वो भी हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए इसीलिए ये फॉल्स की जो चीज है ये आपको मन में रखनी चाहिए। नाउ फॉल का रिजल्ट क्या होता है, और फॉल साइन भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप गिरेंगे तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से फॉल हो सकता है। जैसे अगर आपको झटका लगे, जिसको हम शीजर शीजर कहते हैं कि झटके लगे, तो उससे आप फॉल हो सकता है। लकवा पड़ सकता है, व्हेन यू गेट अ स्ट्रोक then you can fall as a result of the stroke. But at the same time what can happen is fall can also be the first symptom of a disease, कि मतलब आप गिर गए हैं लेकिन दूसरे डिजीज के लिए वो फर्स्ट सिम्टम हो सकती है। अगर आप लकी रहे तो मोस्ट फॉल्स विल कॉज ओनली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मतलब थोड़ा सा माइनर इंजरी हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली सब लोगों का वैसा नहीं होता। फॉल्स 5 to 10% फॉल्स जो है वो फ्रैक्चर कर सकते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सीरियस फ्रैक्चर्स हियर। एक तो है स्पाइन का फ्रैक्चर, दूसरा है हिप का फ्रैक्चर, फिर फ्रैक्चर नेक और फीमर, जो एक और चीज होती है बेसिकली हमारे जो हिप है और जो घुटने उसके बीच में एक अच्छा बोन रहता है जिसको फीमर कहते हैं, तो वो अगर टूट जाता है तो फिर तो हालत और खराब हो जाती है। एंड उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है ब्रेन इंजरीज। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ ब्रेन इंजरीज विच कैन कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। गिरने के बाद कभी कभी क्या होता है, देयर इज अमाउंट ऑफ थोड़ा सा ब्लड दिमाग में भर सकता है, जिसको हम हेमेटोमा कहते हैं, जिसको हम क्लियर तो कर देते हैं पर कभी कभी उसके साथ थोड़ा बहुत ब्रेन का पार्ट भी निकालना पड़ता है। तो उसके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स रहते हैं वो ज्यादा खराब हो जाते हैं। फिर फॉल्स वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन भी है, क्योंकि हमेशा फॉल को घर पे नहीं मैनेज कर सकते। तो मॉर्टेलिटी देखा ये भी गया है कि जिनको फॉल ज्यादा होते हैं उनके मरने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। बहुत ज्यादा बर्डन भी होना आगे चल के, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी की बात हम जीरियाट्रिक्स में हमेशा क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, कि आप कितने, हम जैसे जैसे आजकल हम जब से कोरोना है तो एक आत्मनिर्भरता की बात हुई है, तो आत्मनिर्भरता जो है वो पहले से होनी चाहिए, पर फॉल्स होने के बाद, गिरने के बाद वो आत्मनिर्भरता निकल सकती है एंड यू कैन बिकम डिपेंडेंट एट एनी एज। नोबडी वांट्स इट। एन इंडिपेंडेंट ओल्डर अडल्ट डेफिनेटली डज नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट, कि एक फॉल हो गया उसके ऊपर एंड देन यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जिसको हम कहते हैं इवन खाना या खाना खाना, नहाना, इन सब चीजों के लिए दूसरों पे डिपेंड होना मतलब
दैट इज टू मच ऑफ अ मेंटल एंड अ फिजिकल स्ट्रेन ऑन यू। फिर फॉल के बाद होता क्या है कि आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो पहले से कम हो जाती है। कॉस्ट, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, बहुत सारे टाइम फॉल के बाद जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो मॉनिटरली भी, फाइनेंशियली भी, fall can be a big burden not only on the older adult but on the older adult's family as well. Then another important thing is कि physical fitness अगर आपकी कम हो जाती है तो there is a bigger risk of fall. अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मांसपेशियां जो है, जो आपकी मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, that's why it's always said, I am sure a lot of experts would have spoken at this particular forum would have told you कि exercise is very important whatever your age is. The intensity of exercise जो है वो आपको डिसाइड करनी है। ऐसे नहीं कि आप पहले दिन ही झटके में पूरे दम लगा के कर रहे हैं और फिर वहीं पे फिर बात खत्म हो जाती है। सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ फॉल होता क्या, कहा यह जाता है कि होम इज सपोज टू बी द मोस्ट सेफ प्लेस। इज इट? जहां तक फॉल्स की बात है, सबसे ज्यादा गिरना जो है वो एक्चुअली होम में होता है, because homes can be safe but at the same time can be so unsafe that when you are expecting it least, मतलब आप expect भी नहीं कर रहे और फिर गिरना हो जाता है। बहुत सिंपल चीज बोलता हूँ, रात को आप बाथरूम जाना चाहते हैं, बाथरूम का जो डिस्टेंस है वो आपके बेड से थोड़ा दूर है, जाने के पाथ में लाइट कम है, हो गया एक कारण, आपने ठीक से देखा नहीं, थोड़े स्लिप हो गए, फॉल, और उसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। फिर देखा ये गया है कि जब लोग गिरते हैं तो हड्डियां टूटने का ज्यादा चांस अनफॉर्चुनेटली ओल्डर वुमेन में ज्यादा देखा गया एज कंपेयर टू मेन। पर मेन टेंड टू डाई मोर फ्रीक्वेंटली। अगर एक बार फॉल हो गया तो जब 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 भर्ती होते हैं मेन तो वो उनका मरने का चांस ज्यादा होता है। सबसे कॉमन चीज जो है वो है ब्रोकन हिप, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है फॉल्स के बारे में कि इतना याद रखिए कि जिस चीज को हम होने से रोक सकते हैं उस पे हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इट ऑलवेज इज अ मेस इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रीट एवरीथिंग आफ्टर इट्स हैपनिंग। नाउ रिस्क फैक्टर्स क्या है फॉल के? बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कुछ हद तक हमारा गेट एंड बैलेंस इफेक्ट हो सकता है। तो रिस्क ऑफ फॉलिंग क्यों बढ़ता है उम्र बढ़ने से? एक तो विजन कम हो सकती है, फिर नर्व्स की जो सेंसिटिविटी है, द नर्व्स बिकम मोर, the sensitivity becomes lesser. It could be because of the fact that pure aging or it could be disease also. फिर ability to adapt to the dark, जो डार्कनेस में आंखों की जो एडेबिलिटी, विजन के एडेप्टेबिलिटी रहती है वो भी काफी कम हो जाती है। और डेप्थ सेंस, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब आप नीचे की तरफ आप जा रहे हैं, जब सीढ़ियों से भी उतर रहे हैं और डेप्थ आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, तो उस टाइम में फॉल्स होने का चांस ज्यादा होता है बुजुर्गों में, क्योंकि डेप्थ सेंस जो है वो भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। फिर अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्थराइटिस। इमेजिन कीजिए घुटनों की हड्डियां घिस गए, यू हैव नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेरी डिफिकल्ट टू वॉक। सो व्हेन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वॉक देन द रिस्क ऑफ फॉल इंक्रीजेस। देन बीइंग इन chronic pain, whether it is pain in the back, whether it is pain in the knees, whether it is pain in the hips, your movement will always be affected, and once your movement is affected then the risk of fall will increase. Then having diabetes, I think diabetes is one of the leading causes of causing neuropathy, जिसको हम कहते हैं nerves involve हो जाते हैं तो risk of fall बढ़ जाता है। पार्किंसन डिजीज के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसमें कंपन होती है, चलने में दिक्कत होती है, स्टिफनेस हो जाती है। so that is also another risk as far as fall is concerned. फिर थायराइड की प्रॉब्लम्स, हाइपो और हाइपरथायराइड दोनों से हो सकता है। थायराइड बढ़ जाता है तो भी, अगर कम हो जाता है तो थकावट ज्यादा होती है तो उससे भी फॉल होने के चांस बढ़ते हैं। फिर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली नेग्लेक्टेड थिंग्स, not always by the doctor but a lot mostly by the relatives and sometimes it could be a combination, is foot problems. Foot problems
क्या है, अगर किसी को कोई डिफॉर्मिटी है कि नहीं, चप्पल ठीक से डाल के आ रहे हैं नहीं डाल रहे, राइट चप्पल उस कंडीशन के लिए है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज न्यूरोपैथी, जिसको नीचे पता भी नहीं लगता है कि जब चल रहे, अगर उनको ऐसी चप्पल पहनाएंगे जो सिर्फ स्लिप ऑन है, वो थोड़े टाइम बाद तो चप्पल रहेगी नहीं और उनको समझ में भी नहीं आएगा कि चप्पल थी कि नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों को बकल, जो बकल्स रहते हैं, ताकि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। तो फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और फुट प्रॉब्लम्स उतना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बुनियन कहते हैं, थोड़ा सा स्पर होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बोन होता है पैर में। फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगर जो आपने सुना होगा जिसको संधिवात हम कहते हैं, तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पैर के डिफॉर्मिटी ऐसे हो जाते हैं थोड़े टेढ़े मेढ़े, तो उसमें ऑलरेडी डिफिकल्टी होती है वॉकिंग के लिए क्योंकि डिफॉर्मिटी है। फिर मसल वीकनेस इन लेग्स इज वेरी वेरी कॉमन एज यू एज। अगर आपको कोई मसल पेन हो रही है तो फिर वो एक रिस्क फैक्टर डायरेक्टली हो गया आपके फॉल के लिए। फिर एक बहुत कॉमन चीज बोलते हैं, हमें चक्कर आते रहता है। lot of older adults say that we are having dizziness. So dizziness and vertigo, another treatable condition which can cause falls. Then there are two things I think which are very very important for quality of life. Actually three, but two which are relevant. One is vision, one is hearing. दोनों चीजों में अगर imbalance है तो again risk of fall. The third one is teeth. Teeth might not be directly related to falls, but I think it's very important indirectly. दांत ठीक नहीं है, खाना कम खा रहे, वीक होते हैं, अगेन फॉल्स. देन ब्रेन, आई थिंक जो मेंदू है हमारा, जो ब्रेन विच हैज एक्चुअली बीन given so much of importance, the disorders of the brain can really lead to a huge amount of falls. One is stroke. फिर डिप्रेशन होना. आपको लग रहा होगा नहीं डिप्रेशन में क्या है, नहीं, जब आपका लू मोड होता है, यू विल नॉट वांट टू वॉक, you will not have confidence, and there is a greater chance that you will actually fall. याददाश्त कम होना. Everybody must have heard the dreaded AD, which is known as Alzheimer's disease. So not every memory impairment is Alzheimer's, but agar memory loss ho, so that itself is a risk factor for falls. Then another important thing which we commonly sort of try to neglect but is very important is urinary incontinence, पेशाब छूट जाना. ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग रहे हैं जो रात को, जैसे मैं पहले कोट कर रहा था कि आप चल रहे हैं बाथरूम की तरफ, पता लगा सवेरे मिले बीच में बस गिरे हुए. हुआ क्या था कि वो खुद के यूरिन में ही गिर गए, बिकॉज द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अर्जेंसी इतनी ज्यादा थी कि they just slipped in their own urine and they fell. So that's why if the treatment of the urinary incontinence would have been recognized, then the fall would have never happened. Then one thing which we always tend to neglect, क्योंकि मन नहीं लगता, as you get older थोड़ा बहुत thirst कम लगता है. So lack of thirst, drinking less amount of water will always lead to dehydration. Dehydration will always indirectly have a risk factor of fall. So fluid intake, पानी की मात्रा, पूरे जो दिन में पानी की मात्रा आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आपको स्पेसिफिकली कंडीशंस हो, जैसे डायबिटीज है जिसमें बहुत प्यास लगती है, तो उसमें भी आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इन सब चीजों के वजह से भी फॉल होने का स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी मेंशन इज फियर ऑफ फॉल. एक बार फॉल हो चुका तो उसके बाद ऑलरेडी रिस्क फैक्टर है. वंस यू हैव फॉलन मींस फॉर मी यू ऑलवेज विल हैव अ रिस्क फैक्टर टू फॉल अगेन. बट the lack of confidence will always lead you to stop yourself from walking. And earlier आप बहुत fit थे, but एक fall हो गया, full confidence destroyed, and you don't want to go out also. Suddenly you become an introvert. नहीं बाहर क्या करना है, नहीं घर पे रहते हैं. So that should never happen. Then one of the most important things which most older adults experience is medications. Medications and their side effects can lead to a large number of falls. Self-medication is never good, let me be very frank, and at the same time, sometimes not clarifying with the doctor about the side effects, or the doctor sometimes not telling you कि ये side effect हो सकता है, that also can be leading. Especially अगर ऐसी दवाइयाँ हो जो आपको नींद कराती है, जैसे sedatives है, sleeping pills है, antidepressants है. And if you're a diabetic, you're on insulin, then I think insulin itself
कैन बी अ रिस्क फैक्टर, क्योंकि डोसेज कम ज्यादा होना, अगर ज्यादा डोज ले लिया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, शुगर कम हो गया, एंड यू डोंट नो, आई मीन unfortunately it doesn't come with a red alarm ki no you are at bed now, there will be hypoglycemia. No, it can happen in the bathroom and then that's your fault. Then another thing is blood pressure medications. I think blood pressure medications कब दिए जाते हैं वो बहुत important है. Things that reduce the fluid out of your body, चाहे आप किडनी के लिए लेते हो या लिवर के लिए लेते हो या हार्ट के लिए लेते हो, ऐसी दवाइयां रहते हैं जो सूजन आपके बॉडी में कम करती है. बट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप गलती से 6-7 बजे या 8 बजे ले दवाई, तो रात भर आपको पेशाब लगेगा, और पेशाब लगने का मतलब आप जानते ही हैं, कभी ना कभी आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे और फिर गिरने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा, जितने बार आपको नींद में उठ के बार बार जाना पड़ रहा है. देन लैक ऑफ एक्सरसाइज. मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं कभी नहीं थकता हूं ये बोलते हुए कि आपको एक्सरसाइज करना ही है, चाहे इंटेंसिटी कोई भी हो, क्योंकि देयर इज अ टेंडेंसी फॉर आवर मसल्स जस्ट टू श्रिंक ऑफ कि अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की. फिर एनवायरमेंटल, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. मैंने अंदरूनी बातों की बात कर दी है, अभी बाहर का क्या, द एनवायरमेंट दैट यू आर लिविंग. एक तो है आपका फुटवेयर, दूसरा है रिस्क्स एट होम, कारपेट का हाइट इधर उधर नीचे हो जाना, एक रूम में अच्छा सा मार्बल लगा हुआ है लेकिन आप गिर सकते हैं. फिर बहुत सारे वायर्स होना. आजकल क्या होता है कि वी हैव लॉट ऑफ गैजेट्स, वेदर इट्स अ वीडियो सिस्टम, वेदर इट्स अ टीवी, स्पीकर्स, बट ये सब के कॉर्ड्स और वायर्स जो रहते हैं ना, वो अंदर होने चाहिए, वो बाहर नहीं होने चाहिए, जाके रिस्क फैक्टर. देन क्लटर, टू मच फर्नीचर, मतलब इतना फर्नीचर लिविंग रूम में कि व्हेन एन ओल्डर एडल्ट वांट्स टू मैन्यूवर, they will not be able to even go. Then having a stick or a walker, remember उसका मतलब क्या है, it is an assistive device. But अगर आपने गलत स्टिक यूज किया, गलत असिस्टिव डिवाइस यूज किया, तो वो भी हानिकारक हो सकता है. इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि मिस्टर एक्स ने अगर ये छड़ी यूज करके वो कंफर्टेबल है, तो आप जरूरी नहीं है कि वो छड़ी आपके लिए भी कंफर्टेबल होगी, तो इसलिए वैसे मत कभी यूज कीजिए. आपके लिए जो स्टिक रहेगी वो आपकी स्पेसिफिक रहेगी, तो बिना कंसल्ट करे खुद स्टिक मत यूज कीजिए, क्योंकि करेक्ट यूज ऑफ वॉकिंग एड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन ऑफ कोर्स मुझे पता कैसे लगेगा कि फॉल का ज्यादा चांस है, तो इवैल्यूएशन आपको क्या करना चाहिए. एक तो है कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम में, सवेरे हुआ है, रात को हुआ है, क्या आपको उस टाइम में दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, फिर क्या आप गिरे हैं पहले, क्या आपको टेंशन है कि नहीं आप वापस गिर जाएंगे. दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देन एग्जामिनेशन में आपका चलने का ढंग, बैलेंस कैसे होगा, आप कितने मूव कर सकते हैं, आपकी दवाइयाँ क्या क्या है, आपकी नजर कैसी है, हाउ इज योर मसल, व्हाट डाइट यू आर हैविंग. ऐसे नहीं कि आप इतना कम खा रहे हैं कि इतना थक जाते हैं कि गिरने का चांस हो जाता है. और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि आपको हमेशा अपनी ओवरऑल हेल्थ का केयर करना चाहिए, पर जो चीज दिखती नहीं उसका कैसे केयर करें. बोन हेल्थ इज एब्सोल्युटली नेग्लेक्टेड बाय ऑल ओल्डर एडल्ट्स एंड यंग पीपल ऑल्सो, लेट मी बी फ्रैंक, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल, मैं यंग की बात कर लेता हूँ, हु आर ओनली वर्किंग. आप सनलाइट तो भूल ही जाओ, बाहर दिखता नहीं है, सनलाइट तो दूसरी की बात है. दे आर ऑल इन क्लोज्ड एनवायरमेंट्स नाउ, इवन मोर सो वर्किंग फ्रॉम होम जो हुआ है, बट पहले भी वो जब ऑफिस से हॉस्पिटल, जैसे ऑफिस से कहीं भी जाए वो अपने डब्बों में बैठ जाते थे ऑफिस में. ओल्डर एडल्ट्स ऑल्सो हु आर नॉट वेरी आउटगोइंग, दे हैव बीन एट होम, सो सडन डिस्कवरी होता है आफ्टर द फॉल, व्हेन द ब्रोकन बोन इज सो बैड एंड यू सी, एक्सरे देखते तो ऐसे लगता है कि मतलब पूरा ही व्हाइट है, मतलब हड्डी में दम बिल्कुल ही नहीं. तो ओस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप बोन हेल्थ, जिसको हम कहते हैं डेक्सा, करके देख लिए कीजिए एटलीस्ट वंस एन ईयर कि आपकी हड्डी में दम है या नहीं है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैनिफेस्ट नहीं करता है. अनफॉर्चुनेटली ओस्टियोपोरोसिस विल ओनली मैनिफेस्ट जब आपको फ्रैक्चर हो जाता है दर्द के हिसाब से. फिर डिटेल मेमोरी टेस्टिंग करने की जरूरत है. अगर फिजिकल थेरेपी असेसमेंट है तो वो भी इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए घर बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ आई हैव टू असेस एनीबॉडी फॉर अ फॉल, आई विल मेक श्योर दैट देयर इज वन होम विजिट, कि घर पे कितना क्लटर है, कि कौन सी चीजें क्या है,
ताकि अल्टीमेटली हम ये देख सके कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे किसी ने अभी कमेंट्स में बोला, मैं बाथरूम की तरफ आ ही रहा था। बाथरूम ऐसी जगह है जहाँ बहुत अच्छा मिश्रण होता है, ब्यूटीफुल मिश्रण, मिक्सचर ऑफ soap, oil and water, and it happens a lot of times. Now we have seen when older adults live together, they are more safer. They make sure that it's cleaner so that they are saving each other, because if somebody falls they have to protect themselves. But when younger people are there, I always tell them as caregivers, please be more careful. Remember that you have to make the bathroom absolutely spick and span. It should be dry when an older adult goes. Advise an older adult, not nobody is going to open, but आप अगर confident नहीं है तो do not lock your door, because there has been so many instances where जो older adults गिर गए हैं और morning में discover हुए, रात भर वो चिल्लाए हैं। कुछ आजकल समझ में भी नहीं आता ना कि अगर वो ऊपर नीचे के रूम में आप ऑलरेडी सो गए ऊपर और दरवाजा भी बंद है, so there will be no way to know. So they have just been found. So that's why we always request older adults कि आप जा भी रहे हैं तो फिर let's make sure कि आप लॉक ना करें अपने आप को, क्योंकि अगर गिर जाए तो इमीडिएटली पता लग जाए। Especially अगर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर it's very important that we make sure you reach an healthcare person very very soon. Then care and treatment care. I mean बहुत easily मेरे लिए कहने के लिए कि आपको ये होगा तो ये रिस्क है, ये होगा तो ये रिस्क है, बट करना क्या है उसके बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपनी विजन, अपनी हियरिंग, प्लीज गेट इट टेस्टेड एवरी ईयर एटलीस्ट वंस। इफ यू ऑलरेडी हैव इश्यूज, मे बी आपका जो इंटरवल और कम हो जाएगा, एस्पेशली थिंग्स लाइक इफ यू हैव डायबिटीज, तो आपकी जो आंखों में रेटिनोपैथी करके रहता है तो उसको चेक करने के लिए आपको और फ्रीक्वेंटली दिखाना पड़ेगा। फिर देयर इज समथिंग नोन एज एन एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, उसमें तो विजन बहुत इफेक्ट हो जाता है, तो उसमें मे बी और फ्रीक्वेंटली आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तब भी बहुत चेंजेस होते हैं, पर बेसिक विजन चेक कीजिए, क्योंकि ये करेक्टेबल है। अगर आपको चश्मा है, आपको नंबर लग रहे हैं, तो आप नंबर लगाएंगे तो वो सॉल्व हो गया, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव्स इमीडिएटली, वन रिस्क फैक्टर टेकन केयर। सिमिलर इज विथ हियरिंग। सबसे ज्यादा इनर्शिया अगर बुजुर्गों को रहता है तो हियरिंग एड यूज करने में होता है। एंड आई डोंट ब्लेम यू। मैं इतना ही आपको कहूंगा, डोंट लुक इट इन द नेगेटिव वे। अ हियरिंग एड मेक श्योर कि आपकी हियरिंग बेटर है। डेफिनेशन में वही है, हियरिंग एड असिस्टिव डिवाइस। अगर वो आप यूज करेंगे तो इट मेक्स यू मोर इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। इतना याद रखिए, आपकी स्वतंत्रता को बढ़ा रहा है, आपको झुका नहीं रहा है। सो टू रिमेंबर टू रिमेन इंडिपेंडेंट, यू नीड टू यूज दैट, एंड दिस इज करेक्टेबल। अगेन, अगर हियरिंग इंप्रूव हो जाती है तो एक रिस्क फैक्टर कम। अगर आपको क्रॉनिक डिजीजेस है, जैसे पार्किंसन है, आर्थराइटिस है, हार्ट डिजीज है, तो प्लीज आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के चेक में रहिए। यू हैव टू बी मेक श्योर कि आपका जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज्ड रहे, इन स्पाइट ऑफ कोविड एज वेल। अगर आपको ज्यादा चीजें नहीं है और हॉस्पिटल विजिट करने की जरूरत भी नहीं है, तो ऑनलाइन थ्रू टेलीमेडिसिन प्लीज कीप इन टच, बिकॉज अल्टीमेटली सम एडवाइस कैन बी गिवन एटलीस्ट फॉर कंटिन्यूएशन। नहीं तो होता क्या है कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर पीपल हैवंट विजिट फॉर 18 months। अ क्रॉनिक डिजीज कैन वर्सन इन मंथ्स, फॉरगेट 1 year 2 years में तो बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है। और फॉलो अप के लिए डॉक्टर्स आपको अपने हेल्थ ऑप्टिमाइज करने के लिए बोलते हैं, ताकि रेगुलर चेकअप रहे। Then if you have any heart diseases, you might have to go for a cardiologist, purely because जब आपकी दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो वही सिनकोप की बात जो आप अभी किसी ने की है, तो उसका कॉज ये हो सकता है कि आपकी जो दिल की धड़कनें वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो कम हो रही है। सो मे बी यू विल नीड समथिंग टू टिक योर हार्ट विच इज नॉट एज अ पेसमेकर। तो अगर उसकी जरूरत है तो ऑफकोर्स दैट विल बी एनालाइज्ड एंड अकॉर्डिंगली यू माइट नीड वन। देन ओस्टियोपोरोसिस, एज आई टोल्ड यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी विटामिन डी लेवल्स आप देखें भी और अपने आप को सप्लीमेंट भी करें। दूसरी चीज, बैलेंस गेट और मसल स्ट्रेंथ की जो ट्रेनिंग है, इतना याद रखिए, एक मसल स्ट्रेंथनिंग की ट्रेनिंग आपको बहुत जरूरी है। अगर आपकी मसल स्ट्रेंथ कम है तो लेग्स एंड फीट में हमें उसकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी बैलेंस में प्रॉब्लम है, वॉकिंग में प्रॉब्लम है, तो उसको गेट ट्रेनिंग से इंप्रूव किया जा सकता है। इसमें प्रोग्राम की जरूरत पड़ सकती है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ सकती है, रेजिस्टेंट और वेट। कभी कभी क्या है, वेट ट्रेनिंग भी इंप्रूव कर सकता है आपके स्ट्रेंथ को। और इतना याद रखिए, मैं ये सब बोल रहा हूँ, देयर इज नो एज
कि इस एज के बाद हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते. इट डिपेंड्स अपॉन योर मेडिकल फिटनेस. That's why we always say get in touch with your healthcare provider and then try to go for exercise rather than just going into something. As I told earlier, Mr. X के लिए ये exercise चलेगा, आपके लिए चलेगा, ऐसा नहीं होता. Everybody has a different body, especially an older adult. Then coming on to a very important thing, that is Tai Chi. You must have heard of Tai Chi, yoga, dance programs. I think flexibility is also very important. हमेशा हम सोचते हैं कि एक specific exercise regimen होना चाहिए. Sitting or being idle is the new smoking, which has happened a lot during the pandemic, unfortunately. So इसीलिए what I tell all my older adults still now is घर पे जितना भी स्पेस है, आप ये बहाना मत बनाइए कि नीचे नहीं जा पा रहे हैं. जितना भी स्पेस है, अगर आप चक्कर नहीं काट सकते तो पैरेलल तो चल सकते हैं. अगर चक्कर 10 काटे तो पैरेलल 20 बार चलिए, पर चलिए. डू नॉट मेक श्योर कि आपकी जो बोन एंड मसल स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली ठीक रहे. फिर ऑफ कोर्स कार्डियोवैस्कुलर और एग्जैक्ट फिटनेस ट्रेनिंग भी आपको लग सकती है. देन असिस्टिव डिवाइसेस. रिमेंबर असिस्टिव डिवाइसेस लाइक केन्स है, वॉकर्स हैं, ये सब चीजें आपके लाइफ को इंप्रूव करने के लिए. पर कभी भी प्लीज डू नॉट बाइट ऑन योर ओन कि नहीं भाई ये छड़ी मुझे पसंद आ गई, डिजाइन अच्छी है. नहीं, ये आपके लिए स्पेसिफिक छड़ी होगी तो वैसे ही लीजिए, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ. नहीं तो उसके वजह से गिर जाएंगे. गेटिंग अ रॉन्ग असिस्टिव डिवाइस, यू विल फॉल. Then another very important thing is modification. Where do you modify? You have to modify your toilets. अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो टॉयलेट की हाइट कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप बैठ रहे हैं और बहुत नीचे हो रहा है, तो देखा गया है, रिसर्च भी बोलता है और बहुत सारे पेशेंट्स ने भी मुझे बोला है कि सबसे ज्यादा जब उठने की कोशिश करते हैं, मे बी ऑलरेडी देयर इज अ बैड नीज, देयर इज अ साइड फॉल और देयर इज अ फ्रंट फॉल और देयर इज अ बैक फॉल. सो देन और वैसे ही बैठ जाते हैं, इतनी हालत खराब हो जाती है, हड्डी वड्डी भी टूट गई पर उठ भी नहीं पा रहे. इसीलिए बोला जाता है कि हाइट अच्छी होनी चाहिए, आपको जो कंफर्टेबल है वो. और आजकल हाइट एनहांस कर सकते हैं. और ग्रैब बार साइड में, टॉयलेट के साइड में अगर कुछ भी उठने के लिए एटलीस्ट आपको सपोर्ट हो रहा है कि आप उठ पाए. फिर ग्रैब बार्स बाथ के साइड में भी. कभी कभी क्या होता है, जब आप नहा रहे हैं सडनली थोड़े डिजी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट होल्ड करने के लिए कुछ तो है. अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट फॉल ही हो जाएगा. तो ये सब है ना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अकेले भी. फिर भी अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो डू नॉट हेजिटेट टू टेक हेल्प. फॉलिंग इज वर्स, टेकिंग हेल्प इज इजियर. तो प्लीज ट्राई टू मेक श्योर कि आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखने तक, एंड इट्स वेरी कॉमन, पोस्ट सर्जरी आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वापस आएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, बस बिल्डअप करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिकेशन एडजस्टमेंट. आई थिंक दवाई जो साइड इफेक्ट लगती है उसको कम करना. इट इज सेड दैट कि अगर ऑलरेडी आपके 4 से ज्यादा मेडिसिन है, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बुजुर्गों के रह सकते हैं. I'm not saying doctors purposely put it. Sometimes you have so many conditions that you need medicines. If you have a heart disease, with a diabetes, with a stroke, with a lot of other things, you might have 4 or 5 sort of drugs. Secondly, if there have been too many changes in the doses, sometimes people don't consult and they stop medicines on themselves. So वैसा मत कीजिए. If any drug has been started, please consult your healthcare provider and then only change the doses, or then only try to change it. And recently अगर आप कोई भी dose change होती है तो then also you're under a bit of risk. So your doctor will always say कि नहीं मैंने ये दवाई का dose थोड़ा change किया है, so please be a bit, थोड़ा सतर्क रहिए. फिर home environment, better lighting. I mean there has to be better lighting everywhere, especially night lights ऐसे होने चाहिए कि इतने dim ना रहे कि मतलब किसी को दिखे नहीं. Night lights are specifically for you to maneuver in the night. क्योंकि already dark adaptation is going to be bad in older adults, so they have to be bright enough but not too bright, because इतना ज्यादा हो जाता है तो फिर कुछ दिखता भी नहीं है. That is very important. And important places, path to the toilet, near the toilet, inside the toilet, जहाँ पे गिरने के ज्यादा chances हैं. Then ज्यादा से ज्यादा होके अगर आप ग्राउंड फ्लोर में कंफर्टेबल है तो प्लीज वहीं रहिए, अगर आपका ड्यूप्ले या कुछ भी है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में नीचे तक आने से अगर आपको प्यास व्यास लगने वाली है तो प्लीज मेक श्योर यू ऑलरेडी हैव वाटर, so that you don't have to take unnecessary risks in the night. I mean, these are all preventive ways to make sure that you don't are in a situation to fall. फिर loose carpet होना ही नहीं चाहिए. मतलब you have to level all the carpet.
फर्नीचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, हटा दीजिए, ग्रैब बार्स होना चाहिए, फिर रेलिंग स्टेयर्स में होने चाहिए, और कॉरिडोर, अगर बहुत ही बड़ा सा कॉरिडोर है, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर साइड में बहुत सारे बुजुर्ग आराम से उसको होल्ड करके भी चल जाते, एंड दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट, यू आर मेकिंग देम इंडिपेंडेंट, की थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया, so they are sort of able to maneuver themselves. Then behavioral therapy, it is very easy to say that कि आप अभी तक गिरे नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टू एजुकेट पीपल अबाउट फॉल, दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू, एंड देयर रिलेटिव्स, की नहीं हो, मैंने बोला प्रिवेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि फिर हमें पता लगता है कि उनको फियर ऑफ फॉल है, कि नहीं हमें तो था, पर हम आपने जब तक पूछा नहीं तो हमने बोला कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ी. So don't wait for a fall to occur to actually express the fact कि आपको ठीक से चलने में प्रॉब्लम हो रही है. So that is something you should express to your relatives, and of course express to your doctor so that he can help you. Then lastly, very important is education. Fall prevent आप कैसे कर सकते हैं? एक है आपकी जो मेडिसिन है उसको कैसे यूज करना है. दूसरी, फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन स्किड होना चाहिए, ताकि आपका जो और सरफेस एरिया का नीचे जो कांटेक्ट है वो ज्यादा रहे. जितना आप सरफेस एरिया के कांटेक्ट से कम है उतना गिरने का चांस ज्यादा है. देन थिंग्स लाइक लेंसेस, आपके जो ग्लासेस है, ट्राई टू अवॉइड मल्टीफोकल एंड बाईफोकल व्हाइल टेकिंग स्टेयर्स, बिकॉज that can be slightly difficult when you are actually trying to maneuver. Then अगर आपको ब्लड प्रेशर तो है ही, तो फिर उसकी दवाइयाँ का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है. कभी भी जल्दी में मत रहिए. अगर आप लेट के उठ रहे हैं, टेक योर टाइम. डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ जर्की मूवमेंट्स इन विच सडनली द ब्लड प्रेशर कैन एक्चुअली फॉल. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करके एक रहता है जिसमें 2 पोजीशन में 3 पोजीशन यूजुअली हम लेते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. तो सडनली अगर बीपी डाउन हो जाएगा तो तभी आप गिर जाएंगे, क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल दैट टू एनी मोमेंट. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट्स की अगर जरूरत आपको पड़े, बाय प्रोडक्ट्स आई मीन अगर आपको कोई भी क्या कहते हैं हैंड रेल्स की जरूरत पड़े, फिर स्टॉकिंग्स की जरूरत पड़े, तो उसको जरूर लगाइए. खाना पौष्टिक होना चाहिए, हैव प्लेंटी ऑफ प्रोटीन, फ्रेश फ्रूट्स, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. हाउएवर मेक श्योर आपका फ्लूइड इनटेक जो है वो 6 बजे के बाद बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पिएंगे तो आपको शायद बार बार आपको फिर पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है, एंड दैट इटसेल्फ कैन ऑब्वियसली लीड टू अ फॉल. नाउ अनदर very important thing is हाउ डू यू मैनेज. लाइफस्टाइल भी तो इम्पोर्टेंट है. सिर्फ ये कहना कि आप फॉल मैनेज कर लेंगे कैसे, तो एक चीज आपको मॉनिटर करते रहना, आपका गेट, आपका बैलेंस, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन. अगर फॉल होता है और आपको उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कोई हेड इंजरी हो गई है, फ्रैक्चर हो गया, तो उसको मैनेज करना ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना याद रखिए, आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं तब भी फॉल नहीं होना चाहिए. सो यू शुडंट बी इमोबाइल इन द हॉस्पिटल आल्सो. सो प्रिवेंशन ऑफ अ फॉल इन द हॉस्पिटल इज आल्सो समथिंग व्हिच आई रियली सॉर्ट ऑफ एम्फसाइज ऑन. तो जैसे जैसे आप इंप्रूव हो रहे वैसे वैसे चलने लगिए, पहले में भी विथ हेल्प और धीरे धीरे विदाउट हेल्प. इतना याद रखिए, one of the most important things to prevent falls is to know that you have certain diseases and you would want to obviously tackle them, but at the same time modify certain things in your life, चाहे वो diet है, lifestyle है, and home modifications. I think home modifications बहुत ज़्यादा important है. So fall is not something which you should just push under the carpet just because you think नहीं मैंने अगर बता दिया तो फिर मतलब क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा. बहुत सारे ओल्डर एडल्ट्स छुपाते भी है कि वो गिरे थे. प्लीज डू नॉट डू दैट. not for because of anything, just to not make others worry. but कभी कभी क्या होता है, sometimes we have discovered certain things have been missed, कि सर पे लग गया था, फिर धीरे धीरे वो ड्राउजी हो गए, फिर समझ में आया कि नहीं गिरे थे तो सर पे लगा था, और फिर ऑब्वियसली थोड़ा ब्लड एक्यूमुलेट हो गया था. और बहुत सारे टाइम वो बेसिकली दे आर नॉट एबल टू से, दे फेल, दे डोंट इवन रिमेंबर. मतलब गिर के फिर बस डिस्कवर किया क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया. तो unwitnessed fall is one of the very difficult things for us to tackle because there is no caregiver. The older adult is only found, so it is all on judgment कि कहाँ से क्या हुआ.
and then we are obviously trying to do things. As a caregiver, मेरे हिसाब से very important thing is do motivate the older adults to walk, but don't push them. Sometimes what happens as caregivers, we mean good, but we push them too much, and then they try to do too much more than what they might be able to do, and then if it leads to a fall, they don't have the confidence ever to do it again. Another thing is, if you are taking any kind of transplant, अगर knee हो, hip हो, इतना याद रखिए, transplants do not change anything. You have to walk after that. Or usually most surgeons, orthopedicians अगले दिन चला देते हैं. तो motivation आपका बहुत high होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि गुड़गा बदल जाएगा लेकिन कुछ बदलेगा नहीं. Another thing very important before I end this, always manage your weight. Too much loss of weight, I am not happy. In older adults क्या बहुत ज़्यादा suddenly weight कम हो जाता है, तो that would be very sort of difficult for me to digest. But too much of weight is also not important. Remember, अगर बहुत ज़्यादा weight है, knees पे effect हो रहा है, hip पे effect हो रहा है, they have taken your weight for years together. ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 दिन उन्होंने weight उठाया. So ultimately it is an impending fall. So try to modify things, because as I said earlier, prevention of fall is what we need to do. You will not be treating the fall, you will be treating the consequences, which can be from anything minor to as glaring as death. So thanks a lot for your patient hearing. If there is anything you want to ask me, you can go on. Thank you. Thank you, Dr. Prem. And let me tell you, ladies and gentlemen, this 40 minutes talk has a lot of science behind it. आप सबको तो लगा होगा कि डॉक्टर प्रेम ने अभी टॉक दिया है, but this was all based on science. And you must remember that when there is science behind what somebody says, it means कि पहले वो कामयाब हो चुका है. See, what I want to emphasize, whatever Dr. Prem has told you is not a trial. ऐसा नहीं है कि वो कह रहे आप ट्राई कर लो तो ऐसे हो जाएगा. No. Whatever he has said has been proven to be useful. So whatever little you do out of this, it will be benefiting you in terms of quality of life. Every time I've spoken to you, I've always insisted on quality of life. So आप जो भी करेंगे, आपकी quality of life पहले से जरूर improve होगी. How much it improves? Your effort. Because what he said, he is talking to you कि fall से बचिए. Fall हो गया तो फिर तो होता रहेगा सब चीज. So important part is fall से बचना. So Dr. Kalu, are we taking any questions or comments? Yes, Dr. Saab. In fact, there's a question from one of our elders that regular chronic cramps in legs while sleeping. In fact, they wake up at night because of the cramps and unable to tolerate the cramps. No respite. Yeah, so basically, cramps, of course, have to be treated. Usually, they can be treated with vitamin E and other ways as well, depending on the source of cramps. Sometimes people can have something known as restless leg syndrome as well, which will be treated in a very different way. But yeah, it can be a problem because restless leg syndrome में तो बिल्कुल नींद नहीं आती. मतलब it is so bad that people will not even get people will not get sleep. So yeah, I think specific to the condition, we obviously try to treat, which will obviously be when we know more history about the person. But yeah, it is one of the causes, and it has to be managed sort of accordingly. Now another thing is sleeping. I mean, since we just talked about it, make sure you don't sleep too much in the day, because anything more than half an hour is not really sort of recommended, because if you sleep too much, then ultimately you will obviously be not getting enough sleep. And then you have to remember there is something known as a biorhythm in your body. You do not change it a bit too much, because then in the times when you don't get sleep, then you end up obviously getting up, and then that itself obviously can be a risk of sort of fall as well. So be very careful. So Mrs. Mukherjee has restless leg syndrome. So she wanted to check if you've got some easy remedies or some methods in which it can be. To be very frank, restless leg syndrome itself has got a lot of causes. But ultimately,
the biggest problem is it interferes with Dr. Grewal has already said, and I am saying since day point one, is the quality of life, because it's just so much of मतलब बिल्कुल ही स्थिर नहीं रहता, उसको कहते हैं स्लीप इफेक्ट हो जाता है, डेली एक्टिविटीज इफेक्ट हो जाती है. So of course we'll have to sort of see ki what kind of symptoms you have, whether they worsen at the night. Iron deficiency se bhi kabhi kabhi hota hai, so we'll have to sort of correct that. Usually you might need a bit of sleep study also to actually see कि कोई और sleep disorder भी है क्या restless leg syndrome के साथ, and depending upon that थोड़ा behavioral modification and at the same time थोड़े medication से ही usually restless leg syndrome treat hota hai. But to be very frank, it's not very easy. It's not very easy to sort of treat. But yeah, I'm not saying it's mandatory to have a sleep study. Usually कभी-कभी होता है क्या है कि restless leg syndrome के साथ there's something known as sleep apnea, जिसमें आपकी जो सांस बीच-बीच में रुक सकती है सोने के टाइम, तो वो डिस्कवर करने के लिए वो करना पड़ता है. But I think more than anything, thoda behavioral modification and sometimes certain medications, which will be, to be very frank, very specific. So I don't want to go into too much of details into that. I would say that we can focus on, if at any point movement disorders, then let me just put it into perspective then. So a lot of comments in the chat box for you, Dr. Prem. They want you to visit Delhi and visit a couple of our elders' places. So whenever you're coming to Delhi next, we have a lot of guests for you. Sure. And of course, somebody has just told about non-skid. Of course, that is very pertaining. Remember one thing: non-skid mats are supposed to be there only. Sometimes what happens, people clean them so frequently daily with soap and everything that the non-skid mat is there, but we are making sure that it is not non-skid anymore. So make sure that after you clean it, it is fully pitched dry, and then only you put it back. Nahi to that itself will be a cause of fall. So, and these are very small things, but imagine small changes versus prolonged hospitalization, financial, so many burdens that falls happen. So please try to make sure that jitna kam ho fall utna zyada behtar hai. If you're living alone, I would say ultimately please make sure that at least your neighbors ya koi hai that they know. Then there are a lot of technological advances. We also have falls, we also have alarms. There is remote monitoring jo aajkal hoti hai, jisme if a person not being in the same house also can know if there is a fall. I mean, not being in the same continent also, where people actually track their own parents. So I think for such people who are alone, that should be done purely because then the emergency services can be employed very quickly. In anything, I think Dr. Grewal would agree with me absolutely, is कि हमारे so-called medical field में time बहुत important रहता है. जितना ज़्यादा time ज़्यादा होता है, उतना organ damage, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो heart हो, चाहे वो brain हो, चाहे वो bone हो, उतना ज़्यादा effect होता है. So I think remote monitoring, which is very much, I mean, with all happiness, I'm saying is very much coming in, even in elder care to a great extent in India. And I think the pandemic has helped us in that as well, कि remote monitoring के वजह से भी हम ज़्यादा बुजुर्गों को fall से बचा भी सकते हैं, और अगर falls हो तो help भी कर सकते हैं. That is possibly the new thing that is going to come in. And very important what Dr. Prem ने अभी कहा, that बड़ी छोटी सी अब मैट की बात हो रही है. Remember, it is a very small change that you can make, but it is going to have a long impact on your safety within your own house. So what is important is small changes make you much more confident. And what he just said, एक बार गिरने का गिरे भी नहीं, लगा कि मैं गिर जाऊंगा, तो the moment you get that fear, then that fear grows. That fear grows. I have noticed, Dr. Prem, many a time, कि once if some elder opens up, like you said, specifically पूछना चाहिए, आपको गिरने का डर तो नहीं? And when they take small little measures, छोटी-छोटी changes किया, their confidence level comes back. So don't hesitate to try each of the small items that Dr. Prem has told you, because they will build your confidence. And that confidence building is very essential to prevent fall.
I think, Dr. Kalo, if there's anything else you would like to mention? So, Dr. Grewal, it's been very insightful. In fact, Dr. Prem has covered most of the aspects what our elders' questions also were. So Yeah. there were a lot of questions which came in regarding the fall, but during the entire explanation, you've covered all of it. So we didn't have to ask you separately. So it's been really, really nice. And elders, if there's any more question, you can either raise your hand or maybe you can put it in the chat so that Dr. Prem can answer accordingly. Gaurav, may I request you to please give the audio rights to Mr. Satyendra Jagdhari? Okay. What I want to know, is there any special precaution in going up and down the stairs for elders? Yeah, as far as precautions in going up and down is concerned, one is of course directly proportional to your condition. If you have very bad knees, I wouldn't recommend you to take the up part a lot. Down is not that difficult. Secondly, do not hurry. I mean, when you go up and down the stairs, try to take your time. If there is a rail, I hope there is one, obviously. If there isn't, it becomes a risk, because there is a rail. Try to take support of that and go, rather than just making sure कि आप ऐसे चल जाए, because a lot of times क्या होता है, you tend to miss steps. We are not worried about whether you'll be able to climb up and down. When you miss the step, then you just sort of go, I mean, just go slipping down, and then multiple. You can have issues of the back, you can have issues of the knees, the way you actually fall, and maybe even hit your head. So I would say, make sure that you take your time. If you have an assistive device and you still want to take the stairs, I don't say that you shouldn't. It depends on how narrow the stairs or how broad they are, because sometimes the assistive devices cannot fit into the stairs also. So in that case, I would say, even if it's one floor and the stairs are going to be a risk, do not feel that, no, if I take the lift, it becomes a big deal. No, you are better protected. That's why you're taking the lift, not because you're not independent. So these are some very few basic tips which you should sort of follow. If there are one more thing, if there are no rails, then go towards the wall, if there is a wall. And also, doctor, is it a good way to climb up and down with both the feet on one step first and then following it up on the next with both the feet again together rested on the second step? Yeah, it depends on, of course, what kind of condition you have. Yes, slower the better. So if you do that, it's fine, but don't be in a hurry. Sometimes what happens is we are so quick, even elders, I'm not even saying young people here, that we tend to rush. We tend to rush through the steps, and then we actually miss it. And that rushing is not because we are good or bad in walking. It's because we want the steps to end quickly, because it gives us tension. So that is something you should follow. And another, what elders need to understand, you see, ज़्यादा हिम्मत मारने की जरूरत नहीं है. You see, don't try something which is beyond yourself. It's better to be cautious than to be caught in a trap. आप कुछ कह रहे थे, Dr. Kalo? Doctor, one more question from Miss Neelu is: should elders avoid sitting on the ground or carpet, etc., or is that okay if they sit with cross-legged? See, if you are actually comfortable with it, then it's fine. But the problem in sitting down is usually not the sitting down part only, it's the getting up again. So when you try to get up again, especially you are going to sit for a long time, then even a younger person finds it very difficult. So at that time, the risk of fall, especially a bit of dizziness, all these things will sort of increase. So I am saying, if you're not able to do it, don't push yourself just because others are doing it. Know your limitations. I think that is something which is very important in anything that you do as an older adult. Push the boundaries if you can, but know your limitations, because ultimately the secret of living long is with all of you, because you are living long. I cannot disclose any secret because I don't have any, but all I can say is be safe rather than sorry, because sometimes you don't get a chance to be sorry, because the one fall, I have seen people having one fall and that's fatal. Never fallen in life. But that's why prevention is better than cure stands in medicine. Prevention of fall is better than cure. I think that's maybe the best particular line I can tell you. Right.
Thank you so much, Dr. Prem. Thank you so much. Thank you, Dr. Grewal. It's been a very insightful session. हमारे elders को आपने बहुत सारे ऐसे small little things बताई जिसकी वजह से falls can be prevented. And I'm sure it is very, very informative for all our youngsters here at Amoha. Thank you so much, Dr. Prem. It's a pleasure having you here. Thank you so much, Dr. Grewal. Thank you. Good evening. Thank you, everyone.